emotional intelligence, I would like to take your thoughts, somewhere else. Because हम लोग फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम पहले अपने बारे में बात करें। तो अपने बारे में मुझे ये बात करनी है कि हम यहाँ 3 अलग अलग व्यक्ति इस शरीर में रहते हैं। एक मेरा शरीर है जो भूख, कपड़ा, मकान, दुनिया के सामान, सेक्स और सीख में डील करता है। दूसरा व्यक्ति है मेरा मन, जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किए, एक्सपीरियंस किए, इवेंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है और पास्ट की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आगे का तुक्का लगाता है और भय और चिंता उसमें जोड़ लेता है। और ये जो मन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है। तीसरी चीज है मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको मैं आत्मा भी कह सकता हूँ, जो कि अपने उद्गम से जुड़ी रहती है। उसका बाहरी स्वरूप ध्यान है और इस ध्यान को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये अंतर संबंध है मेरे ध्यान का, मेरे मन से और मेरे शरीर से। तो जो की आत्मा है उसके गुण है प्रेम, दया, क्षमा, विवेक, धैर्य, शील, नम्रता, निर्भीकता, स्टेट ऑफ आर्ट, प्लानिंग एबिलिटी और उसकी एग्जीक्यूशनबिलिटी। ये सब मेरी आत्मा के गुण है। लेट अस फेस एज इट कम्स, जस्टिस, दूसरों के प्रति उनका एप्रिशिएशन करना, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, ये आत्मा के गुण हैं। इन तीनों का अंतर संबंध अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। मेरे शरीर की जरूरतें और मेरे मन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरीज में इकट्ठा करना और आगे टोका लगना, उसकी वजह से मेरी इमोशंस तैयार होती हैं। और माइंड एंड बॉडी वर्क टुगेदर इन टेंडम टू क्रिएट माय इमोशंस, एंड इमोशंस क्रिएट टेररिस्ट आउट ऑफ मी। इवन फॉर माय ओन सेल्फ I get sick, mentally sick, and all my problems start from my mind only. So understanding the mind and the combination of body and mind together create emotions, and emotions will create terrorists. So now how to really avoid this particular part? Because the third thing in me is my creative intelligence, which has got all the solutions of my life. Now these solutions are based on love, compassion, mercy, wisdom, humility, state of art, planning ability. Let us face as it comes. All those divine attributes have got all the solutions of life. Because they tell you how to live nicely here in this time-bound material creation. Because the life of a dog is about 14 years, the humans are designed for about 120 years. Each life on earth is time-bound program. So we must understand that the divine should run my mind and body, whereas my body and mind are running my divinity. Because the outer expression mark of my soul is my attention, and wherever the attention goes, the divine energy flows. So my mind, it withdraws my attention and uses it for its jobs. My body uses it. Like my hunger, first requirement of my body, through the mind my soul knows this, and then that creative intelligence takes the body stepwise into the kitchen. By the time you are walking to the kitchen, the mind adds on the information of this it had earlier, and this is how mind informs you that mummy has kept the money under the pillow, and the vehicle is there and the shop is there. It's all information. Go and bring and let me taste that. Because मन ने पूरा हलवाई का दही भल्ला याद करा दिया, not the food which was lying in the fridge. So this is how body and mind are using myself, my entity, my soul, because these are two temporary things. They are not sustainable, neither my body nor my mind, because all those attributes are so unsustainable, whereas all the divine attributes are sustainable. So I think my 4 minutes are over. I have crossed
53 more seconds. Thank you very much. थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई EQ की बात हम कर ही क्यों रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इसकी ज़रूरत इतनी पड़ी है और हम इतनी फ्रिक्वेंटली क्यों यूज़ कर रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है जब हमारा ये मानना था कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन वेल्थ, सेकेंड नॉलेज। तो हम इस होड़ में लग गए, पैसा कमाने लगे, हस्बैंड वाइफ सब कमा रहे हैं, पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम कर लो, कोई बिजनेस प्लान है, सब पैसे कमा रहे हैं। दूसरा आया नॉलेज की बात करें तो नॉलेज भी डिग्रीज हम गेन करना शुरू कर दिए हैं, बच्चों के पीछे पड़े होते हैं नंबर लाने के लिए, फिर टॉप कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाना चाहिए और सब्जेक्ट पे तुम्हारी बहुत कमांड होनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर एबल टू अचीव दैट देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। एंड तब हमारे लिए स्कूल कम पड़े, कोचिंग में हमने डाल दिया, 2-3 ट्यूशन भी हम पकड़ा देते हैं बच्चों को। फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि और पोस्ट कोविड में स्पेशली देखा कि एक तीसरा फैक्टर भी आया विच वॉज हेल्थ। हमने रियलाइज किया कि नहीं, नॉलेज और वेल्थ नहीं है ना, हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हर कोई जो है जिम जा रहा है, योगा कर रहा है, ऑर्गेनिक फूड खा रहा है, तो चलो जी ये 3 वीक हो गए, बट फिर भी हमें लगा कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वाई अ टैलेंटेड स्टूडेंट हु हैज हाई IQ लेवल, ही क्रैक्स IIT, टेक्स द एडमिशन इन हिज डिजायर्ड कॉलेज एंड देन ही कमिट्स सुसाइड, why he is into depression and anxiety. Second, we realize a person can be very successful in terms of money, positions, power, and he may have all the materialistic things of life, but still at the end of the day we feel very empty and lonely. क्यों? क्योंकि शायद हमने अच्छे संबंध नहीं बनाए, शायद वो फैमिली फ्रंट पे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाया, and that's why he does not have anyone around him, especially trustworthy people with whom he can share his feelings. तब हमें लगा कि no, there are two another factors which are very important, and which is relationship and then emotional well-being. And here came the concept of EQ, emotional quotient और emotional intelligence. तो अब जो है सक्सेस का मूल मंत्र वो चेंज हो गया, पहले था हाई IQ एंड अब है एवरेज IQ प्लस हाई EQ। तो आप एवरेज हैं पढ़ने में, टैलेंट भी आपका ठीक है, मीडियोकर स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, देन यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये मैंने स्कूल टाइम में ये देखा है कि जनरली जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं दे आर मोर सक्सेसफुल दैन द टैलेंटेड वंस, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होती है वो पूरा टाइम अपनी टैलेंट या सब्जेक्ट नॉलेज को अक्वायर करने में लगे होते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा हम ये भी बात करें कि अगर EQ है तो EQ के कितने डायमेंशंस हैं, क्योंकि ये सारे डायमेंशंस पे अगर हम अच्छे हैं तभी हम कह सकते हैं कि माय EQ लेवल इज हाई। सो इंग्लिश में अगर थोड़ा डिफाइन किया व्हाट इज EQ, सो दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and manage your own emotions as well as emotions of others. तो सबसे पहले हम अपने सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग, सर ने भी बोला कि पहले हम अपने इमोशंस को समझें और उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको मैनेज करना सीखें। एज वेल एज वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके नीड, उनके फीलिंग्स को समझें और उनको इमोशनल सपोर्ट दें। एंड हियर केम द 5 डायमेंशंस ऑफ EQ के 5 डायमेंशन है, थोड़ा सा ये टेक्निकल लगेगा बट समझना जरूरी है। सबसे पहला EQ के अंदर आता है सेल्फ अवेयरनेस, जो भी मैंने बात की। आज बच्चों से पूछो, एलॉन मस्क के बारे में सब जानते हैं, फिल्म स्टार के बारे में सब जानते हैं, क्रिकेट के बारे में सारी पत्री उनको पता है, लेकिन अपने बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो बच्चों को बोलते कि पहले अपने बारे में जानो, व्हाट यू आर फीलिंग, आर यू सैड, आर यू एंग्री,
क्योंकि मैं तो इरिटेटेड हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो एंग्री हूँ, बट एक्चुअली अंडरलाइंग इमोशन इज सैडनेस। क्योंकि आज सुबह में पता चला था नंबर कम आए थे मैथ्स में, इसलिए मैं सैड हूँ, और सैड हूँ तो इरिटेटेड हूँ, और इरिटेटेड हूँ तो मैं अपना गुस्सा दूसरों पे निकाल रहा हूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, व्हाई आई एम फीलिंग, एंड देन कम्स द सेकंड component which is self management. It is also important you learn to manage your emotions. Emotions बहुत तरह के हैं, तो sadness, anxiety है, fear है, whatever. क्योंकि अगर हम मैनेज नहीं करेंगे there will be anger outburst. आपने peer group में हम physical abuse, verbal abuse, husband wife के बीच में भी बिल्कुल चलता है, या हम impulsive decisions लेते हैं लाइफ में। आज गुस्से में आगे frustration में हम क्या कुछ नहीं करते हैं, कोई सेल्फ हार्म कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है। आजकल गॉन आर द डेज पत्नी भी पतियों को पीट रही है। अभी पीछे मेरे पास ऐसे केस भी आए थे। तो मतलब जब हम इमोशनल होते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या बिहेव कर रहे हैं। एंड देन वेयर माय रिलेशनशिप विल स्टैंड। देन केम द थर्ड पिक्चर, सेल्फ मोटिवेशन। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। और सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो, most of the students IAS, IPS, डॉक्टर। अच्छा, उसके लिए पढ़ने की भी ज़रूरत है, तो मे बी दे आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, बट सबके लिए IAS और IPS बनना इज़ 2 मिनट मैगी मेकिंग प्रोसेस। कोई हार्डवर्क नहीं करना चाहता है, रिजल्ट सबको चाहिए लेकिन हार्डवर्क नहीं करना। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन देयर लाइफ। और वो क्यों होता है? Here comes the self motivation. कि if I am self motivated, then no matter what distractions are there in my life, मेरे फैमिली में हो सकता है पापा की जॉब चली गई, कोई हेल्थ इशू है, but still I am focused on my goal. I have the ability to bounce back from any difficulty of my life because I have to achieve what I want to achieve. Then comes the fourth element, which is empathy. सबको पता है डिक्शनरी मीनिंग है पुट योरसेल्फ इन अनदर्स शूज, यानी दूसरों के जूते को पहन के देखो तो पता चलेगा कि जूते में कहाँ कहाँ होल है और कितनी परेशानी हो रही है। तो आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, फैमिली में घर के अंदर रह रहे हैं, बट एक दूसरे की फीलिंग से बिल्कुल अनजान है। सारा दिन हम अपने अपने काम में लगे होते हैं, देयर इज नो फैमिली टाइम। बच्चे पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, कपल्स एक दूसरे को शायद ठीक से महीनों हो जाते हैं देखे हुए। तो ये जो एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से ही रिलेशनशिप जो है वो टूट रहे हैं, इतने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, बच्चे भी इस तरीके से जो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। देन केम्स द लास्ट वन, दिस इज सोशल स्किल्स। देन अगेन all of us are aware, it's a way how I am interacting, how I am making relationship, maintaining relationship, कैसे मैं communicate करता हूँ, क्या बोलूँ, कब बोलूँ, कैसे बोलूँ। So all these 5 dimensions are very very important for our own emotional well-being, for having a healthy relationship around us. But कौन सिखाएगा इसको? सब बोलते हैं कि charity begins from home, but सिर्फ पेरेंट्स का ही काम नहीं है कि किसी ने बोला कि एक बच्चा अगर घर में जन्म लेता है तो सिर्फ घर का बच्चा नहीं, एक समाज का है। तो आई थिंक एवरीवन हैज टू कम आउट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन जनरल, सबको अपना रोल निभाना है। और बहुत अच्छी बात है कि अब हम अपने स्कूल्स में ऐसे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें मैं ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराती हूँ उनके एज के हिसाब से, और उनको बताती हूँ कि कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक पेरेंट्स, हम सब सक्सेस की बात करते हैं, पर कभी हम अपने फेलियर की बात करते हैं, स्ट्रगल्स की बात करते हैं। बच्चे को वही लगता है कि लाइफ में सक्सेस 2 मिनट मैगी वाली चीज़ है। नहीं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस इन माय लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन कम्युनिकेशन को फैमिली में आपस में हम बैठ के एक दूसरे के साथ ओपनली अपनी चीज़ों को शेयर कर सके। व्हाई देयर इज एन हेजिटेशन, वो बातें ही नहीं हो रही हैं। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट
conflict resolution. Parents have to be very good role model. हम जब गुस्सा करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? अभी 2-3 दिनों पहले one girl came to me and she studies in a very renowned school. I will not take the name. और उसके वो she was hitting her own mother. And then father came into picture और then he started narrating कि मैम पता है बड़े अच्छे से प्राइडली बोल रहे थे कि मुझे ना इतना गुस्सा आता था 2 साल पहले तक कि कुछ भी बात हो पहले पीटता था और बाद में पूछता था कि क्या बात है. और he was also in abusing his own wife. तो अगर बच्चा यही सब चीज़ दिखा रहे हो, आप ये रोल मॉडल दिखा रहे हो कि आपको गुस्सा आता है तो आप ये करो, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो इसको ऐसे हैंडल करो. तो आई थिंक these are the things which we have to take care of. And thank you so much. नमस्कार. इससे पहले कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं on the topic of today, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जॉइन मी इन गिविंग अ बिग हैंड टू मोना मेहरा. मोना मेहरा को मैं 2 साल से जानता हूँ. I've been observing her and इतना जनून, पैशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन इनका मैंने देखा है for this cause, and it's brilliant what she has done because family is the backbone of society and civilization. आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं. The topic given is nurturing and developing EQ in families. So I'll restrict myself to families. EQ has become a big buzzword पिछले 15-20 सालों में. Everyone is talking about EQs, and the West इसको ऐसा पैकेज कर रहा है as if कि उन्होंने इसको ढूंढा है. The truth is, अगर हमारी ancient wisdom देखें, even West की ancient wisdom देखें, there's ample of evidence, there's ample of knowledge कि emotions क्या हैं, what role do they play in human life, how can they be managed, because Indian wisdom तो सारी की सारी emotional management पे based है. In this background, मैं कुछ बुनियादी चीज़ों की बात करूँगा, कुछ फंडामेंटल चीज़ों की बात करूँगा, जिस सशक्त बुनियाद की सुबह से बात हो रही है, वो ऑटोमेटिकली बने. You know, in this game of nurturing, developing in family, the main component and the key person is the parent. The parents हैं, how the parents, why? I'll give you 3 things. बच्चों के लिए माँ बाप उनके भगवान होते हैं, and वो silently observe करते हैं, and they repeat, they behave the way the parents behave. And science ने यहाँ तक establish कर दिया है, from the time the lady conceives, उसका behavior बच्चे को impact करता है. The child is still to be born. So the parents got to be mindful of their behavior right from the time the lady conceives. Number 2, बहुत से parents गलती क्या करते हैं, वो बच्चे को अपना extension मानते हैं. The truth is, parents are only caretakers. There are only caretakers. Their job is to nurture the child, to help the child grow into a holistic being, an independent being. और तीसरी गलती पेरेंट्स जो करते हैं, अपने अधूरे सपने बच्चों के थ्रू पूरे करने की कोशिश करते हैं. अरे भाई तुम नहीं कर पाए. The child is not a tool or a platform कि वो आपके सपने पूरे करें. तो ये तो 3 चीजें हैं जो अगर पेरेंट्स माइंडफुल होंगे, that will create a lot of difference in families and society. और अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूँ which is called the 4S formula. ये फॉर्मूला सिर्फ ये बुनियादी रिलेशनशिप की बात है. And what are the 4S's? सीन. आप लोग बताइए, जब कोई आपको आधा अधूरा देखता है, आधा एक्सेप्ट करता है, आधा नहीं देखता, या आधा देखता है आधे को नजरअंदाज कर देता है, तो कैसा लगता है? बुरा? अच्छा नहीं लगता? तो जब आप बच्चों के संग करते हैं तो बच्चे को क्या लगेगा? नंबर 2, सूद.
जिस टाइम आप प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, यू वांट समवन टू हियर यू आउट, जो बल्लम लगाएगा आप पे, और वो समय आप मेरे पास आते हैं, मैं बल्लम की जगह आपको ज्ञान देने लगता हूँ। आई डोंट सूद यू, क्या आपके मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। और जब बच्चा उस सूदने के लिए आता है, हम क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं अक्सर। नंबर 3, सिक्योर। ऐसा नहीं होता कई बार आप लोगों के साथ, सबके साथ, कि आप अपने दिल का हाल खुल के बोलना चाहते हैं विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड असिस्ट। मेरे संग होता है, और जब उसको ये स्पेस नहीं मिलती, वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, नेगेटिविज्म starts coming into that person. And parents are the people जो बच्चे को स्पेस देंगे। And lastly, जैसे ही सीमा जी ने कहा, वो पिताजी आए, उन्होंने कहा मैं पहले मारता था फिर पूछता था। अरे भाई, तो इंसानी फितरत है कि we want to be physically safe। अगर पेरेंट्स मारेंगे बच्चों को, what's going to happen? Distance will automatically come in। देखिए, and before I end, I'll tell you one thing. Bobby picture आई थी 1971 में। It showed a particular state of society, जहाँ पर पेरेंट्स के पास समय नहीं था बच्चों के लिए, बच्चा भाग जाएगा। अब मेरे फादर ग्वालियर में पोस्टेड थे, आज ही आधा ग्वालियर बॉबी फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा था। क्यों? Because they were seeing themselves in the role of Pran and Sonia Sahani। So with this I would end. I have just given you 7 points which is what to think, and if you find merit in them, please spread them। And I repeat, seen, soothe, secure and safe, ये बुनियाद है। EQ will take care on shoulder। Thank you very much for bringing me here, and I'm really grateful to you for doing that। In fact, morning से जब से मैं यहाँ हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, and इतना अच्छा knowledge in fact I have gained today, and I feel मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सबके आगे। But anyways, in fact, Seema ma'am, she is a psychologist, and in fact my own ma'am is sitting here, Aparna ma'am. She's from my college and she was my teacher there. And then what Sandeep ji said, I agree with all of them. But सिर्फ एक दो चीजें मैं बोलना चाहूँगी, and बहुत short में, that ज्ञान, ध्यान और सम्मान, this is what matters। You know what, Daniel Goleman, when he brought this concept of EI earlier in 1995, जो उन्होंने book लिखी थी, that why EQ can matter more than IQ। Since IQ के बारे में भी हमने बात की, हम अपने बच्चे जो पैदा होते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो किस स्कूल में जाएगा, क्या बनेगा। We are just bothered about the IQ of the child and the intelligence level the child gains, but we actually forget about EQ development here। So since we are talking about the families, so परिवार एक छत के नीचे एक साथ रहना नहीं है, जबकि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे की परवाह करना है। So that is the most important thing। Like Seema ma'am said, self-awareness and self-regulation. I feel emotional awareness and emotional regulation is very important। What we are gaining, ज्ञान मैंने जैसे बोला, it is not only the bookish knowledge, it is the emotional knowledge also। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे घर में दूसरे पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, एक आर्टिस्ट होना चाहती हूँ अपने घर को देखते हुए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे हस्बैंड मुझे उसमें सपोर्ट करें, या हस्बैंड अगर एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं एंड ही वांट्स टू गो आउट इन द इवनिंग एंड ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम देयर, आई शुड बी सपोर्टिंग हिम। So that support, that parva, that care is very important according to me। So I'll just give you food for thought, one simple question, that if you are going for an interview and in case रास्ते में आप देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप क्या करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा वो सोचिएगा, and I think that's the biggest challenge where we have to think that whether EQ is important or IQ, or we have to balance it out। Thank you so much।
और उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना। जैसे आरती जी ने जो बताया उसमें समाज में जो है जो भी स्टेटस है, भेदभाव है महिलाओं के साथ में, उसके उदाहरण से उन्होंने समझाया। अपर्णा जी ने उसको कैसे लागू करना है, समस्या को कैसे ठीक करना है, तो उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को जो है दिया। जी जो है थोड़ा सा और आगे चले गए, उन्होंने एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क रखा जिसमें उन्होंने कहा कि शरीर है, मन है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस में प्रेम, दया, क्षमा जैसे गुण हैं, और यदि हमारा अटेंशन उस तरफ जाता, आत्मा की ओर जाता है, तो हमारे अंदर ये मूल आते हैं। तो देखिए सोशल साइंस से भी गहरी जो साइंस है वो फिलोसॉफी है ना, लेकिन फिलोसॉफी को जब हम अप्लाई करते हैं तो साइकोलॉजी में आना पड़ता है ना। तो सीमा बहन जो है वो साइकोलॉजी में आगे उन्होंने साइकोलॉजिकली चीज़ों को डिफाइन करते हुए 5 डायमेंशंस बताए EQ के, और उन्होंने एक बात में सहमति व्यक्त की, जहाँ भारद्वाज जी में कह रहे थे कि पहले अपने को समझना है, तो उन्होंने कहा कि पहले अपने इमोशंस को समझना है ना, फिर उसके बाद जो है ये सब सोचते हुए ऐसा लगा कि अब इसको व्यवहार पे कैसे उतारा जाए। तो व्यवहार में उतारने के लिए जो संदीप गुप्ता जी ने जो है अपने कुछ सुझाव दिए कि बच्चे जो है माता पिता के लिए भगवान है, तो बच्चे जो माता पिता जो व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। माता पिता बच्चों के ठीक है, सॉरी, समझ तो सब लोग हैं। बच्चों को जब माता पिता अपना एक्सटेंशन मान लेते हैं या अपने अधूरे सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कहा कि उससे समस्याएं बनती हैं, इम्बैलेंस आते हैं। तो कोई अधूरा देखना नहीं चाहता है ना अपने को, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब मदद लगाने की जरूरत होती तब ज्ञान देने लगते हैं ना। तो मुझे लगा कि व्यावहारिक पक्ष को उन्होंने जो है प्रस्तुत किया। फिर बाद में वसुधा जी आई, तो वसुधा जी ने कहा कि बात तो ठीक है, सब टुकड़े टुकड़े में बोल रहे हैं सब लोग, तो अभी इसको समन्वय करने की जरूरत है, सबको जोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ज्ञान को ध्यान से जोड़ दिया तो चांद भारद्वाज जी की तरफ चली गई। और फिर सम्मान से जोड़ दिया, है ना। तो सम्मान, जैसे ही सम्मान की बात आती है तो संबंधों में एक्सपेक्टेशन की, जिसको हम लोग EQ कह रहे हैं, उसकी बात आ जाती है ना। तो सम्मान एक व्यवहारिक पक्ष है ना। ध्यान जो है वो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से, नॉलेज जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन का आउटर एक्सप्रेशन है ना। ज्ञान जो है अभिव्यक्ति, तो इन तीनों का समन्वय करके आपने एक बात दी, तो मुझे लगता है कि सभी को बड़ा फायदा हुआ होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक राउंड हम लोगों को और इजाज़त दीजिए 2-2 मिनट में, है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पीकर होते हैं ना, जब बोलते हैं और जैसे ही उनको बोलने के बाद बात खत्म करते हैं तो उनको लगता है कि 2 चीज़ें रह गई। तो मुझे लगता है कि दो बातें जो रह जाती है। Everybody is a unique person, and that uniqueness has to be understood from the home ground. Love, compassion, nurturing, attention, all of it amongst the people we are here today. और इसके बजाय हमें जिस चीज़ से बैटल करना है वो है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट एक बार बच्चे को दिखा दिया तो वो सीख जाता है और सारी जिंदगी अपने आप को, अपने पति को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर इन लॉ, पेरेंट इन लॉ, बॉस, कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, अनदर कंट्री को नेग्लेक्ट करता है। नेचर, राइट। दिस इज वेयर वी आर हेडिंग टुडे। 2024 में वी आर हिट massively by something that is being called polycrisis. And polycrisis की सबसे बड़ी दिक्कत है ह्यूमन इंटेंशन। हम लोगों ने बहुत प्राइड लेके अपने आप को सबसे उत्तम श्रेणी में रखा है, लेकिन ये सबसे गलत है और आज हमें उसका नतीजा दिख रहा है। अगर नहीं देखना चाहेंगे तो 2-3
साल और जाएंगे दिख जाएगा. This world is really in need of unity. SDG 17 is the truest SDG of them all. It is about partnership, it is about coming together, it is about uniting as one race and not the best, just one amongst the nature. Like Carl Sagan said in a very beautiful movie called Pale Blue Dot, I invite everybody to see it. It's a 3-minute film. ये एक ही planet है. अगर इससे जितना बाहर zoom करते जाएंगे, आपको सिर्फ एक कण दिखेगा suspended in a sunbeam. यही वो पृथ्वी है जहाँ पे हमेशा एक राजा, एक रानी, एक अमीर इंसान, एक गरीब इंसान, एक स्वस्थ इंसान, एक अपाहिज इंसान, जो आ चुका है, जो आएगा. इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है. And the respect and the worth of this planet can be understood by the first rite of passage for human beings, which is listed as the first samskara, the rite of passage defined by the intention with which you conceive a child. 8 billion लोग हैं, शायद हम लोग ये माने कि कहीं ना कहीं that the overall quality of mankind has gone down in the last 20 years. एक के बाद एक बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेधड़क, बिना सोचे, बिना महसूस करे. I rest my case. Thank you. कहा गया 2 बातें और केवल 2 ही बातें. मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्योरेटिकली भी समझ लिया, प्रैक्टिकली भी समझ लिया, पर सिर्फ ध्यान देना, ऑब्जर्व करना और सुनना, अगर हम ये 2 स्किल्स अपने अंदर जो है इम्बाइब कर लें, अपने अंदर पैदा कर लें, तो उसके बाद बाकी सारी जो आगे की यात्रा आसानी से और सुखद तरीके से पूरी कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी. थैंक यू. बहुत अच्छे से सबने बयान किया. मैं 2 मिनट में एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैंने कही थी कि निर्मोही होना है. बिकॉज अगर हम इमोशनल होंगे तो टेररिस्ट बनेंगे, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी. हर चीज़ को उसी एंगल से अगर तोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ये इन तीनों का समन्वय करना है. तो उस समन्वय के लिए हम लोगों ने एक फिलॉसफी बनाया जिसका नाम है को-एम थियरी इन प्रैक्टिस. फिलॉसफी है, जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि मेरी जो बात है वो फिलॉसफिकल है. तो वो जो फिलॉसफी है उसका अर्थ है कि को-एम, AIM, correlation of your attention with information and material. Material is your body, information is your mind. And attention is the outer expression of your creative intelligence. This is a philosophy. Basically, all the religions are philosophies. As Surendra Pathak ji said, that philosophy is an area which develops psychology. And psychology develops your behavior. So to change this behavior within the family, we got to first of all understand our own self, that how we can run with those divine attributes instead of running our life on the attributes of mind and body which are not sustainable. And those divine attributes are always sustainable, and that is what will help us devise a good human being, and that is what can support a good family, and it can rather develop and imbibe all those qualities in them. Basically, this is all done by genetic engineering. In my case, my mother, when she conceived me in 1942, she meditated कि मेरा बच्चा विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करे. That idea has really developed something wonderful, and I may take half a minute more to explain the genes. So your genes have got information from your father's side, and right from the single cell of the human body, and from the mother's side, all of that is there within that zygote cell, which is the first cell in the mother's womb. And that cell, which is having all the information from both the sides, it knows कि किस किस्म का तो आंखों का रंग होगा, कैसे चेहरे के फीचर्स होंगे. तो जो एनवायरमेंट्स हैं उसने सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी तक का डिजाइनिंग किया है और अपडेटिंग किया है. जीन्स ने हमारी, उसमें वो इंफॉर्मेशन है, विद्यमान है. वो कैसे विद्यमान है वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि किस प्रकार मेरा मन इंफॉर्मेशन में डील करता है. और एवरी टाइम आई डाई, and then after my death, my mind and soul goes back to the
creative intelligence and to the astral vision comes out again to make another body, right from single cell to this body. So every time this attention engraves through the imprimatur to the laws of nature into the material, क्योंकि आपके saliva में आपकी genes नजर आती है, and this is how you can know what it is all about. Thank you very much. I've already taken a lot of time, so just 3 things I will say. Summarize. कोई भी relationship को accept each other. पूरी जिंदगी husband wife एक दूसरे को बदलते रहते हैं और माँ बाप बच्चों को बदलते हैं. Second is respect each other. यानी differences हो सकते हैं, conflict हो सकता है, but हमें अपना limitation पता होना चाहिए कि क्या नहीं होना है, even if there is a conflict. And third is, no matter what, always give the basic support which a human being can give. I just take up my philosophy की बात करी, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ पर, मगर मैं उस फिलॉसफी का एक जीता जागता उदाहरण हूँ. मैंने अपने जीवन में बहुत उठक पटक देखी है. I have seen the heights of success, like right on top of Everest, and I have seen the depths of failure, जैसे पैसिफिक के बिल्कुल बॉटम में भी. And क्या चीज which got me out of it? A simple formula which I am sharing with everyone. Number 1, attention management. कुछ भी करने के लिए attention की जरूरत है. Number 2, observation. हम बाहर की दुनिया देखते हैं, बट आपके अंदर क्या चहल पहल हो रही है वो नहीं देखते. और जो आपके अंदर चहल पहल हो रही है, वही इमोशंस के थ्रू बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट होती है. Number 3, pause. We are always in a rush to respond. अरे बाबा रिएक्ट मत करो, सांस ले लो and सोच के रिस्पॉन्ड करो. And number 3, and the most important, which I call the mother of everything, acceptance. Acceptance of reality as it is. और हम लोग रियलिटी कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मुझे गुस्सा तो आया, बट तुमने गुस्सा दिलाया, तो तुमने शिफ्ट कर दिया गोल पोस्ट. द फैक्ट इज तुम्हें गुस्सा आया, इससे गुस्सा आया, मेरा बच्चा फेल हो गया, मैं अनसक्सेसफुल रहा. और जब आप ये करते हैं, अगेन वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस कम्स इनटू प्ले, राइट, एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑन योर ओन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. इट इज extremely effective. So with this, thank you everyone. Thank you. So one more line here, like what Sir and Seema ma'am just said: acceptance, respect, and no expectations. I think these 3 things are very important. And besides this, अभी जो संदीप जी ने बोली ये बात कि हाँ ठीक है, हमें we should actually learn to pause before responding. That is very important. And in fact, we should listen to understand more than responding and reacting to the situation. So that is one very important thing which I feel, and we should encourage dialogue, with open-ended questions, so that आपके पास लोग easily आ सकें अपना, जैसे कि हम, I'll just say one thing here: you need care when you deserve it the least. जब हमें सच में ज़रूरत होती है किसी की, उस टाइम हम उसके लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे लिए कर रहा होता है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है. इस टाइम पे उसको कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न में, बट ज़रूरी है. सो आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EQ. थैंक यू. जैसा मैंने कहा था कि ये एक नई मेथडोलॉजी है ना, जिसमें हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है और उसको कहते कहते लगता है कि अभी और कहना है. और मुझे पता है कि यदि एक राउंड और चलाएंगे तो फिर कुछ न कुछ बात क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही समझ लिया जाए, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए. तो बहुत बढ़िया है. तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार. आरती एजुवालिया जी, प्रोफेसर अपर्णा जी, डॉक्टर जान भारद्वाज जी, संदीप गुप्ता जी, सीमा सिंह जी और पुष्पा अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और हमको विश्वास है कि आगे भी हम लोग आपस में सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे. और सीखना सिखाना यदि इस तरीके से होता है तो EQ बैलेंस हो जाता है.
तो मंच पे ही रहे अभी अभी थोड़ा मोमेंटो का एक सेशन है छोटा सा 1 मिनट का। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच सुमित यादव जी हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SYY इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। थोड़ी व्यस्तता थी, नहीं आ पाए दिन में, बट अभी हमारे बीच है तो उनका बहुत बहुत स्वागत। उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया हम लोगों को इस कार्यक्रम में, पानी से लेकर सब चीज़ों हर तरह से, तो वक्ता है उनको मोमेंटोस देंगे। पाठक जी ने इस सेशन को मॉडरेट किया। ये मेरी पत्नी भी है, सबको बता रही हूँ। वसुधा अरोड़ा जी बोल देगा, आप बता देंगे, शांति रहनी चाहिए। अब मैं सुरेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि सुमित यादव जी को मोमेंटो दें। नहीं सर, बिल्कुल सभी लोग आ रहे हैं। यस जीवन में उतार ले तो शायद बहुत लाभ होगा हमारा भी और परिवार का भी और समाज का भी। थोड़ा विषय कॉम्प्लिकेटेड है, फैमिली लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन यथार्थ यही है कि जब फैमिली ठीक है तो लाइवलीहुड्स की व्यवस्था भी हो जाती है अच्छी, और लाइवलीहुड्स की व्यवस्था होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काफ़ी सारे गोल अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा इस सेशन के हमारे जो स्पीकर जो वक्ता है उनको मंच पे आने के लिए। हमारे बीच प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं जो बिमटेक के CSR हेड है। कल आपके एक दोस्त का सुनील गौतम जी का भी मेरे पास फोन आया था, उन्होंने थोड़ा बताया था। और 10-15 दिन पहले मोना मैम से हमारी मीटिंग हुई थी, तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जाना होता है, हमारा बहुत प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन ये इवेंट सुन के ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम रुकने नहीं चाहिए, होने चाहिए। तो उसमें दूसरा सेकंड थॉट ना लाते हुए हमारी टीम ने, हमारी कंपनी ने सोचा इसको हमें स्पॉन्सर करना चाहिए, जाके देखना चाहिए। तो आगे भी मैम आप करेंगे तो हम इसको दोबारा, अगर आप जितनी बार में कहेंगे स्पॉन्सर करेंगे आपका ये प्रोग्राम। और ये आपका जो काम है ये रुकना नहीं चाहिए, तो आप जो लोग कर रहे हैं ये दिल्ली में एक जगह नहीं, ये काफ़ी जगह होना चाहिए। आप मेरे एक सजेशन है RWS को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ आया हूँ तो सिर्फ अटेंडेंस नहीं लगाई है, मैंने सभी पैनलिस्ट की बात भी सुनी है। और बुक्स पढ़ने वाले सबका मेरे को थोड़ा सा, मेरी हॉबी भी यही है, मैं न्यूज़ को कम देखता हूँ, बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। हमारा ध्यान प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने एक चीज़ सीखी थी। मेरे को एक मेरा दोस्त था, कई बार होता है ना, कस्टमर जाता है, मैं भी अपने स्टाफ को बताता हूँ कि हम ये सोच लेते हैं कि बंदा हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, और जब वो नहीं लेता है तो हमें बड़ा दुख होता है। एक हम सामने वाले से अपना वो सोच लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, और यही चीज़ हम अपनी फैमिली के अंदर परसेप्शन बना लेते हैं कि मेरा बेटा ये उसको पढ़ना ही पढ़ना है, मेरी बीवी को मेरे लिए काम करना ही करना है, मेरे माँ बाप को हमारे बच्चे के लिए करना है। अगर वो परसेप्शन नहीं बनाएंगे, जो हमारा इमोशनल, आपने EQ की बात करी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारा, वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। हमने बताया कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी वो बताना भी बहुत जरूरी है। हम अपना उम्मीद को ही कम कर रहे हैं कि सामने वाले को जैसे करना है वो वैसे करेगा, वो उसकी जिंदगी है, उसको कैसे जीनी है। मैम आई थी तो मैम के साथ एक हमारा डिस्कशन हो रहा था कि मैं ऐसे हो रहा था, मैं मेरी बीवी से मेरी बहुत बढ़िया लड़ाई होती है ना कि एकदम अलग हो जाते हैं, लेकिन एक मेरे पास सही भी होती है।
उसको कैसे ठीक करना है, सारी चीज़ें वो भी हमें पता है। मैं पूरे दिन भी रहता हूँ, 24/7 हमें काम करना होता है। बीच बीच में आपको और मेरा डिस्कशन चला था कि कैसे हम ये साथ को ये करते तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपना तरीका है सबका करने का। यहाँ आया, आपकी मेरे को बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें मैंने रिकॉर्ड भी करके अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा, वीडियो को भी दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लगा मैम। आप इसी तरीके से आप ऐसे इवेंट्स करते रहिए, आगे भी आप बुलाएंगे जरूर रहेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सुमित जी, आपका साथ मिला तो हम लोगों का काम हमारा आसान हो जाएगा। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा अभी Go about it, and we are homemakers, and sometimes people don't understand what homemakers are doing, the kind of effort they have in home. They put all their energy, and sometimes they are not recognized. She told me everything about it. I just kept listening, and then she asked me, "कि आप कैसा सोच रहे हैं इसके बारे में?" And there was only one word जो मेरे दिमाग में आया उस time, and that was sensitivity. We all lack sensitivity. So if we have a little sensitivity towards each other, I think we can really understand each other's pain, really understand what the other person is going through, and the whole world can be a little simpler and better for all of us. And that is why I stand here. I have my own foundation, Ansh Foundation, which is a network of sensitive humans. It is same what Mona is doing, and I said that we work together and we all of us can do a very good work in this, because we also stand for sensitivity, compassion and respect. That is what we are trying to have in society. We have psychologists with us, we have trainers with us, we go to offices, schools and colleges, we have creative workshops, and that is one single thing that we want, that every human being should have an aware mind. Mental health is very important. We are talking about EQ, we are talking about IQ, और सारी चीज़ों का सार यही है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, एंड दैट इज कंपैशन, सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट। अगर ये हमारे अंदर है तो हम हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेररिज्म भी क्या है? एक तरह से माइंड है और बहुत सारे लोगों को स्वे कर लेता है। रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, फैमिली इश्यूज है। इट इज ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द माइंड। और इसी तरह से ये सोच फैमिली मेकर्स भी एक अच्छी मुहिम है, एक अच्छा जरिया है फिर से हमें याद दिलाने का दैट जितना भी हम एक दूसरे के प्रति सजग होंगे, सेंसिटिव होंगे, तो हम एक दूसरे के प्रति और एक अच्छा रिलेशन और एक अच्छा समाज बना सकते हैं। सो आई विल जॉइन हैंड्स विद Mona, and I think I wish her all the best, and we all together can do a good work. Now I would like to tell a little about Roshni Majumdar. She is the artist here, because we also believe from Ansh that art is an art form where you can have more love and compassion to art. Art brings you together. Art imbibes more and more culture within us. You can learn from art. It relaxes you. And when you're relaxed, when you're in an aware mind, you feel better with people. So she is here. Roshni Majumdar, a computer engineer turned Bharatnatyam exponent and teacher, disciple of Padam Shri and Padam Bhushan awardee Guru Dr. Saroja Vaidyanathan. She has worked as a classical dancer, a Hindustani classical vocalist and trainer, and is also keen in dealing kids with autism, PTSD, and other psychological and cognitive disorders with music therapy and dance movement therapy, which we are promoting through Ansh, that dance is also an art form which can improve people with their disorders. At present, she is also associated with schools where she is giving training to kids. And she also works as a personality development coach and public speaking expert in various platforms, trained under renowned expert Ms. Gopika Kumar. So we welcome you, Roshni. Thank you so much for having me here. I'm sure I'm not tall enough to be seen right from here, but then it's an absolute honor to be a part of this wonderful, wonderful initiative today. Well, I just blindly follow Anjali Didi, whatever she says कि यहाँ जाना है, I go because I know she would always choose the right vision and mission for the society.
And I'm absolutely humbled, honored, privileged to be given this chance to showcase my art through the vision of a common woman. I'm sure you're gonna get the message which I'll just put forward through my dance performance. Namaskar और बहुत बहुत आभार. Mother, Amma, Ma, Umma. The dictionary defines mother as a woman in relation to her child or children. And well, I don't have a definition. We get so caught up in putting people into boxes, defining them, and we shun those that don't fit into our boxes. So no, I don't have a definition. What I do have are experiences and observations. To me, a mother is someone who raised me the best way she knew. A mother is someone who is taken for granted until you become one yourself. There are also those we overlook when talking about mothers. Those who lost a child or children in a miscarriage. It doesn't make them any less of a mother. Those trying to conceive in the hopes that someday they will have their own child to love and nurture. Those who are single parents and fulfill a dual role. Those trying to adopt a child. Trans women who are always ostracized and still manage to give their children all the love and care they are denied. A mother is all of this and everything in between. So who is a mother, you ask? Well, a woman could be a mother, but not every mother has to identify as a woman. After this wonderful performance, we'd like to now talk on the ये performance जो है हमारा बहुत सारा मतलब बहुत benefits होता है. In fact इन्होंने बोला भी कि डांस मूवमेंट थेरेपी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं. इवन मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली डिसेबिलिटी वाले लोगों को काफ़ी फायदा हुआ था. And we had organized a program at Pragati Milan on this Wellness Expo, where Akansha was there, who was lead a session. We had 6 sessions on wellness, yoga, mental health, and dance movement therapy also. Akansha ma'am को नापते हैं? Akansha जो US में करके आई थी, you know her? Yeah, I know. Kind of therapies, art therapy, music therapy, dance therapy, which can solve many problems that normal therapists can't. So let's have all those together. Thanks a lot. Wonderful performance. Thank you. Let's give a big hand. So Professor K.K. Upadhyay, head CSR BIMTech, and earlier he was head CSR FICCI, the first batch from Indian Institute of Rural Management. Professor K.K. Upadhyay, who guides us a lot. And about 9 years back, we had a first World Women Awards here, 2015. He was in the jury.
Dr. Rashmi Singh ji was also on the jury, and the third jury, Dr. Pran, whom I met 2 days back, he had to go somewhere, so he could come for this program. So we are in touch with everyone who was there since then and before. So we have this, whatever network we build or movement we build or team we build, we should keep on expanding. So we should be associated for a long time. That is what we try to do. So our next speaker is Kumar Amitabh ji. Surya Jetri ji, sorry we missed you in the first half. Please come for the award. We are happy to present you in fact. Person who enthralled us with the beautiful dance. Roshni Ullas, please. मुझे डांस बिल्कुल नहीं आ पाता था, न हो पाता था, न अभी हो पाता है। तो मुझे और अच्छा लगता है, बल्कि मुश्किल लगता है कैसे लोग करते हैं। तो धन्यवाद। बिल्कुल, वो तो ऐसे भी महिला शक्ति का आशीर्वाद तो जरूरी है। नहीं सर, मैंने प्रणाम किया। अच्छा, बिल्कुल, शुभाशीष। तो अब मैं बुलाता हूँ रंजू मिन्हास जी को। रंजू मिन्हास जी वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो है ही, बहुत सारा इनका सोशल एंड ग्रीन एंटरप्राइजेस है, ट्रेनिंग देती है वुमेन को, आरडब्ल्यूएस के लिए काम करती है। रंजू जी प्लीज। विजय कुमार कट्टी जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं और ओनर हैं ये अपने वैसा इंडिया के प्लांटेशंस बहुत करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं। और दिल्ली आए हैं तो इनको हमने स्पेशली बोला कि आप इस प्रोग्राम के लिए रहिए, रुकिए, और ये तैयार भी हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार। और भी कुछ ये बहुत अच्छा करते हैं, ये बताएंगे जब बोलेंगे तो। कुमार अमिताभ जी, कुमार अमिताभ जी अर्क पत्र है। अर्क पत्र बेसिकली सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। इनका एंटरप्राइज है, सोशल एंड ग्रीन एंटरप्राइज है। और साथ में खुशी ग्राम के को फाउंडर भी हैं, काफ़ी इन्होंने हमें गाइड भी किया है, साथ भी दिया है। तो अमिताभ जी का भी स्वागत है। और डॉक्टर सुची भारती, इनको मैं बुलाना चाहूँगा। ये वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन सोशल वर्कर भी है। इन्होंने सोशल वर्क में बाकायदा मास्टर की डिग्री भी ली है और पीएचडी भी किया है इन्होंने गवर्नेंस में। तो सुची भारती से मैं नोट करूँगा कि बैठ, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग 5-5 मिनट बोलते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो 5 मिनट का समय है और जितना कम बोलेगा सबको पता है कि यहाँ पे ट्रिक क्या है। जितना कम बोलेगा उतना अच्छा प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इतना नहीं, आप प्राइस के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करें। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच सूची से शुरुआत करें, जो सबसे यंग है हम लोग के बीच में। ये बाद में ठीक है। तो मैं अमिताभ जी से भी शुरुआत करता हूँ। अमिताभ जी आइए, आप पूरे विषय को फैमिली लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जुड़ा है? माँ क्या होती है? दरअसल बात तो नहीं कि हम कर रहे हैं आज। माँ स्रोत होती है हर चीज, माँ स्रोत होती है हर चीज, और उसी से हर चीज की उत्पत्ति है। इसलिए माँ इतनी महत्वपूर्ण है और वो सब कुछ बनाती है, वो सब कुछ बनाती है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हमेशा घर परिवार की बात करें तो बच्चे की पहली शिक्षक माँ, बच्चे की पहली शिक्षक माँ। कोई एक चीज जिसको आप कह सकते हैं वो है ऊर्जा, वो भी माँ है।
तो माँ इतनी महत्वपूर्ण होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में इसको बहुत पहले समझ लिया गया था। हमारा जीवन बिल्कुल अलग था, हमारा जीवन बिल्कुल अलग था, और हम इस बात को जानते थे कि इस धरती पर जब हम आते हैं तो हर चीज जो कुछ हमने ग्रहण किया है वो यहीं से मिलता है और यहीं छोड़कर हमें जाना होता है। इसलिए किसी भी चीज का संचय करना, हर एक चीज को घसीट के अपने कब्जे में लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आम सामान्य जनजीवन में नहीं थी हमारे। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक सभ्य शांत सचमुच विश्वगुरु देश जो था, दुर्भाग्यवश कुछ ज्यादा जो निश्चित हो जाने की वजह से, ज्यादा सभ्य हो जाने की वजह से गुलामी का शिकार हुआ। और जो हमारा ज्ञान था, जो हमारे जीवन का तरीका था, वो सारा सुख चैन जो है वो खो गया। जबकि सारी दुनिया में सबसे समृद्ध देश हमसे सोने की चिड़िया कहे जाते थे, सब कुछ हम करते थे। लेकिन आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, मुझे कहना चाहिए, हालांकि बहुतों को पता होगा, हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा करता था, हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोया करता था, और बीमार तृष्णाए होकर मरने वाले भी बहुत कम ही हुआ करते थे। अगर आप अपने प्राचीन समृद्ध अस्तित्व को, संस्कृति को जाने, हमने बहुत कुछ जान लिया। हमने जान लिया था कि आनंद का स्रोत अंदर है, यहाँ पे, बाहर किसी सामान में नहीं, किसी सामान में। इसलिए बाहर से चीजें हासिल करके, भौतिक तरीकों से या शरीर के इस्तेमाल से जबरदस्ती करके आनंद प्राप्त करना हमने समझ लिया था। आनंद का स्रोत हम समझ गए थे कहाँ। आध्यात्मिकता जो हमारे अंदर आई, हमारे देश में, जो जन जन में रची बसी है। आज भी गांवों में आप चले जाइए, वो बड़े आराम से, और उनको पता है, प्रकृति की छोटी से छोटी गतिविधि देख के, नदी किनारे बैठ के प्रसन्न हो लेता है, पेड़ों को उगते देख के प्रसन्न होता है, फूलों को खिलते देख प्रसन्न हो लेता है। उसको कोई बहुत बड़ा क्लब या बहुत सारा सरंजाम और उछल कूद करने, बड़ा सा पुल बना करके, हंसी, मतलब दुनिया के 10 लाख लोगों का संसाधन 10 लोगों के लिए जमा करके उसके बाद खुश होने की जरूरत नहीं होती। अपने घर में तालाब के किनारे बैठ के हम खुश हो जाया करते थे, आपस में खेल करते थे। तो संतोष जो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको हमने समझ लिया था। आनंद वहीं से मिलता था। इसलिए हमने दुनिया को लूटने, बर्बाद करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। वैसी चीजें, विकास के वैसे उपादान हमारे समक्ष भी आए थे। जैसे बिजली को कहते हैं, बिजली अगस्त ऋषि ने खोज ली थी, लेकिन शायद उन्हें आभास था। हमारे ऋषि मुनि तो रिसर्चर्स ही थे ना, सब जानते हैं, शिक्षक थे, रिसर्चर्स थे। वहाँ की एक छोटी सी बात और बता दो, ये बात आ गई। हमारे समाज में जो समाज के लिए जो लोग काम करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या शोध के क्षेत्र में, किसी भी ऐसे क्षेत्र में ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसको कमाने की अनुमति नहीं थी। वो अपने ज्ञान का उपयोग बेचने के लिए नहीं कर सकता, पैसे लेने। इसीलिए उस जमाने में कोई अशिक्षित नहीं होता था, कोई इलाज के बगैर नहीं मरता था। आज इतने विद्यालय हैं और बच्चे अशिक्षित मिलते हैं, इतने अस्पताल हैं जो चिकित्सा के बगैर उसके बाद में लोग मर जाते हैं, और अकाल तो पड़ ही रहा है। तो उस तरह का जो समाज हमारा था, हर एक गांव अपने आप में पूरी आर्थिक इकाई होता था, और उस पूरी आर्थिक इकाई में ऐसा नहीं होता था कि किसी भी परिवार में बहुत असंतोष या कुछ, और हर व्यक्ति कमा रहा तब आनंदित हो रहा, ऐसा था ही नहीं। कमाने का काम एक दो लोग ही करते थे, बाकी 40-40, 50-50 लोगों का समूह होता था, एक परिवार, कुटुंब होते थे, सब खाते पीते मस्त रहते थे, कोई किसी को कोसता नहीं था। सामान्य जानकारी में बड़े बड़े परिवार, हमने 60-70 के दशक तक जिन लोगों को होश
रहा होगा, उन्होंने अपने आसपास ऐसे परिवारों को देखा होगा। परिवार में एक व्यक्ति कमा रहा है, कोई संबंधों को देख रहा है, कोई खेती बाड़ी देख रहा है, कोई कहीं बाहर आने जाने का काम कर रहा था, किसी के काम को नीचा नहीं समझा जाता। ये नहीं समझा जाता था कि ये कमा के लाएगा कभी इसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं कि ये पूरी सोसाइटी जो है ना, ये तुम्हारा परिवार है, ये समझ लो। तो जो खतरे हैं वो सोसाइटी के बाहर होंगे। जब तुम परिवार समझोगे कि तुम्हारे घर के अंदर ही केवल परिवार है, तो तुम सुरक्षा केवल अपने दरवाजे तक करोगे, उसके बाहर ही खतरा आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन सोसाइटी के बाहर जब खतरा खड़ा है तो आपसे बहुत दूर होगा, और जब भी आप एक साथ होंगे तो खतरा भी कमजोर पड़ जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें समझने के लिए तो हमसे सबसे ज़्यादा जरूरत हमें सहज होना है। खाने के लिए सबके लिए इस धरती के पास है, लेकिन एक भी आदमी के हवस को पूरा करने की क्षमता इस धरती में नहीं है, जो हमारी माँ है। ये अगर हम समझ लें तो हम सहज रहना सीखेंगे और सहज जीवन आनंद लेना सीखेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें चाहिए कि हमारा जो पारिवारिक संस्कार जो था, मर्यादाएं जो थी, उसको फिर से हम अपने परिवारों को सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उस तरीके के हवस के शिकार नहीं हो, असुरक्षा के शिकार नहीं हो, क्योंकि वही भ्रष्ट होने के बड़े कारण हैं। धन्यवाद, मेरा समय पूरा हुआ। थैंक यू। ऐसा है कि अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो आपको टोकने का और रोकने का मन नहीं करता है, लेकिन समय की मर्यादा है, समय किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए मतलब। और अमिताभ जी ने जिस तरह से कहा तो काफ़ी बातें तो इन्होंने समझा दी, जिससे कि आगे का भी हम सोच सकते हैं। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, इनका समझाने का तरीका ऐसे ही है। तो धन्यवाद अमिताभ जी। और अब मैं प्रोफेसर के उपाध्याय जी को से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य दें।